Okay, so today the topic which we are going to do is very, very important. This is called hypothesis testing. I'm sure by now you all know what is hypothesis. We discussed a lot in detail what is hypothesis. Hypothesis is a statement which can be tested statistically, right? So in the uh, in that statement also we already have a guess or solution of a problem, but we try to test it to see whether it is actually true or not. Okay, we did the difference between proposition and hypothesis also. So this is a very, very important topic uh, in research methodology. This hypothesis testing. Now, today we will be learning about the practical portion. There are other methods also. We did about normality, skewness, kurtosis. Through that, we get to know the spread of the data, whether our data is normal or not. Today, we will actually be testing. We will be applying the statistical tools on the data which we will be collecting through questionnaire, right? So how do we do that? Let's start. First of all, hypothesis testing is a form of statistical inference. Okay, now what is this statistical inference? Statistical inference is we statistical hypothesis testing is a form of statistical inference. Now, what is statistical inferences? We work on, we take sample data. ओके मैं बहुत बार ये वाला एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू सी द हैप्पीनेस और द satisfaction of consumers using iPhone. So there are lots of people in the world who are using iPhone. So all the people in the world who are using iPhone is my population, but I cannot test the population, right? What I have is how can I study this? I can take a sample data. For example, I took a sample data of 100 people and I tried asking them few questions about their satisfaction level. So जो भी मुझे उनसे डेटा मिलेगा मैं उसका कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी और वो कंक्लूजन जो ड्रॉ होगा, सॉरी, जो वो कंक्लूजन ड्रॉ होगा, दैट कंक्लूजन इज जनरलाइज्ड ऑन पॉपुलेशन. 100 लोग कहते हैं दैट वी आर सेटिस्फाइड. ठीक है, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं पूछेंगे वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, यस और नो में नहीं. देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज थ्रू विच वी विल बी आस्किंग देम इन डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो whether they are satisfied. So जो भी कंक्लूजन उन लोगों का निकलेगा 100 लोगों का, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे, उस पर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, then we can generalize those conclusion about the population and we can say whether the claim that there is a customer satisfaction among iPhone users is true or not. तो हम population को बताएंगे कि लोग खुश हैं कि नहीं है. Okay, so this is called statistical inference. Now, how do we draw this conclusion on a sample data of 100 people? We draw a conclusion by hypothesis testing. ठीक है, अभी hypothesis testing होती कैसे है? This hypothesis testing has different statistical tools. For example, we can apply z-test, we can apply t-test, we can apply ANOVA test.
we can apply chi-square test, and there are many more tests. ठीक है? So this is about hypothesis testing. Okay. Now, there are various conditions for hypothesis testing, like population distribution जो है, whether it is normal or not, ऐसे देखा था ना हमने. Then sample size क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट लगाना है. Then we have variance of the population. Variance means standard deviation. Variance of population, वो हमारा known है या unknown है, उस बेसिस पे भी हम टाइप ऑफ टेस्ट, ये हमारे जो थे ना टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे. ठीक है, कि कौन सी कंडीशंस कौन से टेस्ट के लिए सुटेबल है. देन वी हैव कंडीशन ऑफ वेदर इट इज वन साइड टेस्ट और वन साइडेड मीन्स one tail or two tail test we will be discussing. Then we have another condition. Do we have whether to use parametric tests or non-parametric test? ठीक है. Now this is very important condition. Parametric test use करने हैं या non-parametric test use करने हैं. Parametric tests वो होते हैं जो हमारे parametric, non-parametric. Okay. Parametric test वो होते हैं. Please mute yourself. Parametric tests वो होते हैं जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होता है. नॉर्मैलिटी इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है पैरामीट्रिक टेस्ट की. ये जो है दिस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन. पावर, अगर हम पावर की बात करें, पैरामीट्रिक टेस्ट्स आर वेरी पावरफुल. जहां तक पॉसिबल हो हमें पैरामीट्रिक टेस्ट ही लगाने चाहिए. ठीक है, क्योंकि यही पावरफुल टेस्ट होते हैं. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं दे आर लेस पावरफुल बेसिकली. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है पैरामीट्रिक का, वहां पे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं. देन वी हैव, इफ यू रिमेम्बर, हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट किया था. ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 तरह का डेटा था: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. नॉमिनल और ऑर्डिनल जो था वो लेस इंफॉर्मेशन देता था. जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नॉमिनल और ऑर्डिनल टेस्ट पे, ऑर्डिनल डेटा पे लगते हैं, जिससे कि हमें बड़ी कम इंफॉर्मेशन मिलती है. बट जो हमारी इंटरवल और रेशो डेटा होता है जिससे हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सब पे पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं. ओके, सो पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो टी टेस्ट, जी टेस्ट आर पैरामीट्रिक टेस्ट. दे आर वेरी पावरफुल टेस्ट. और नॉन पैरामीट्रिक की बात करूं तो chi square test is a non parametric test. Okay, there are other tests also, but right now we will be discussing these tests in detail. Okay, now let me tell you something about statistic and parameter. Statistic word use होता है S, sample के लिए. S for sample, S for statistics. Parameter word use होता है population के लिए. P for population, P for parameter. Okay. First of all, हम mean, बहुत बड़ी mean की बात करते हैं. Average, जो sample का average होता है, mean होता है, we denoted with X bar.
पॉपुलेशन का मीन हम डिनोट करते हैं म्यू से। स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का हम करते हैं स्मॉल एस से और पॉपुलेशन का करते हैं हम सिग्मा से। ओके, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स या ऑब्जर्वेशंस, सैंपल की स्मॉल एन, पॉपुलेशन की कैपिटल एन। These are just basic things which I will be using further. Okay, सैंपल को किससे डिनोट कर, सैंपल का मीन होता है एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन होता है म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस फॉर सैंपल, सिग्मा फॉर पैरामीटर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे। ठीक है, स्टेप्स क्या है उसके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू नल हाइपोथेसिस जो होता है वो होता है स्टेटस क्यू बाय डिफॉल्ट। वी टेस्ट दिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, as it is situation means null hypothesis. We test for alternative hypothesis. So the burden of proof lies on this, but हम जो टेस्ट करते हैं वो null hypothesis को करते हैं। ठीक है, this is very important. टेस्ट किसको करते हैं? null hypothesis को। ठीक है, okay, let me take an example of a coin. ठीक है, कॉइन में हेड और टेल होता है। ठीक है, अब कॉइन को हमने काफी बार ही टॉस किया और उसमें मेजरली टाइम्स हेड आ रहा था। ठीक है, सो हमें डाउट हुआ कि शायद जो कॉइन है वो फेयर नहीं है। ओके, एक एग्जाम्पल और भी मैं जनरली आपको बताती हूँ, पैकेट ऑफ चिप्स। कंपनी क्लेम करती है कि 20 रुपीज के पैकेट में 100 ग्राम्स चिप्स होते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ कि हमने बहुत सारे चिप्स के पैकेट मतलब ओपन किए, खाए और हमें लगा कि क्वांटिटी जो है वो कम है। कंपनी का क्लेम जो है वो डाउटफुल लगा हमें कि कंपनी लिख तो रही है 100 ग्राम्स बट मे बी दे आर नॉट 100 ग्राम्स। सिमिलरली वी वर टॉसिंग अ कॉइन, जिससे हमें लगा कि बार बार जो है हेड ही आ रहा है। ठीक है, so there is something fishy in that coin. Okay, so let us take this example of coin first. So हम पढ़ क्या रहे हैं? Whether the coin is fair or not. कहीं से हमें डाउट हुआ कि कॉइन जो है वो फेयर नहीं है। So we want to test whether the coin is fair or not. Okay, तो हमारा इसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हुआ? By default, as it is situation, that coin has both the sides, so coin is fair. बट टेस्ट किस लिए कर रहे हैं? वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में करते हैं। ठीक है, सो जो बाय डिफॉल्ट होती है हमारी सिचुएशन वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, सॉरी नल हाइपोथेसिस है।
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहते हैं कि कॉइन इज नॉट फेयर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व और व्हाट वी क्लेम कि कॉइन फेयर नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? नल हाइपोथेसिस सेज कॉइन इज फेयर. Alternative hypothesis say coin is not fair. Let me take an example, one more example. For example, a packet of chips. Packet 20 rupees packet of chips has 100 grams material inside. This is as it is situation. Alternate hypothesis, उस पैकेट में 100 grams chips नहीं है. जो नहीं कह रही हूं इसके लिए टेस्टिंग होगी. जो चीज ठीक है उसके लिए तो टेस्टिंग नहीं होगी. जो चीज ठीक नहीं है उसके लिए टेस्टिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो अगर किसी ने क्राइम किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या समझा जाता है कि वो इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी. अगर तो उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस मिल जाते हैं टू प्रूव दैट यस he he is a criminal, then we say that yes, the claim is right. But otherwise, if there are no sufficient proof against a person, we cannot say that person is guilty. Okay, the person is a criminal. So similarly, alternate hypothesis, by default हम सब criminals तो नहीं है ना. So by default we are null hypothesis. Alternate hypothesis क्या है? अगर हमारे अगेंस्ट कोई प्रूफ मिल जाते हैं दैट वी हैव कमिटेड सम क्राइम, सो देन वी कैन बी कॉल्ड गिल्टी. सो दैट इज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ हाउ डू वी टेस्ट दैट द टॉय. अब हमने कहा कि कॉइन जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम टेस्ट क्या कर रहे थे कि कॉइन इज फेयर और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, दैट वी formulated the hypothesis. Formulate the hypothesis. Hypothesis हमने क्या formulate करे थे? Null hypothesis, coin is fair. Null alternate hypothesis, coin is not fair. Now, how can we prove that coin is not fair? We have to perform some experiment. Now, let us see if I perform an experiment. कैसे experiment perform कर सकती हूँ? Let me toss the coin 100 times. ठीक है, मैं toss करती हूँ coin 100 times and then I will see the results. उसके basis पे मैं कह सकती हूँ कि ठीक है कि नहीं है. ठीक है, I am a researcher. I am doing this kind of research. Okay. Now, for example, I tossed a coin 100 times and 50 times जो है वो head आया. This is number of heads. 50 times number of head आया, 50 times number of tail आया. तो मैं कह सकती हूँ coin ठीक है, right? 60 times out of 100 times भी head आ गया तो भी मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, हो सकता है 60-40 ratio is normal. Then I'm trying again, out of 100 मैं कहती हूँ 70 times head आ गया और 30% times tail आ गया. ठीक है, कोई बात नहीं, लक भी होता है. ठीक है, now I'm taking out of 100 times 80 times जो है वो head ही आ रहा है, but only 20% times tail आ रहा है. आप ये भी कह सकते हो चलो ठीक है 80-20 भी रेशियो ठीक है,
बट जब आपने 100 टाइम्स किया, उसमें से 90 टाइम्स जो है वो हेड ही आया, सिर्फ 10 टाइम्स जो है वो टेल आया. सो यू कैन से समथिंग इज फिशी हियर, कि इतना ज्यादा हेड कैसे आ सकता है, राइट. सिमिलरली इट कैन बी ऑन द रिवर्स साइड. 40-60 रेशो भी हो सकती है. 40 टाइम्स हेड, 60 टाइम. सिमिलरली 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकती है. बट व्हेन इट इज 10 times, 10 versus 90, you can say that there is something off. So आपने क्या किया, इस 10 टाइम्स पे, जब 10 और 90 का रेशो हुआ और यहाँ पे 90 और 10 का रेशो हुआ, आपने कहा कि ये दो बाउंड्रीज हैं, कि इस इतना या इसके बियॉन्ड अगर जाता है, सो हो सकता है, जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा था कि कॉइन इज नॉट फेयर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो क्लेम ठीक है, कि कॉइन ठीक नहीं है, क्योंकि 90 टाइम्स हेड आ रहा है और रेस्ट ऑफ द टाइम टेल आ रहा है. सो इन बाउंड्रीज पे मैंने एक बना दिया कर्व. ठीक है. नाउ दिस कर्व इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व. अगर तो मेरा डेटा, मेरा नंबर ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन पे इसके बीच में आ रहा है, 20-30 रेशो, सॉरी 20-80 रेशो, 70-30 रेशो, सो मैं कह रही हूँ कि एक्सेप्ट करती हूँ कि कॉइन ठीक है. कैसे कॉइन ठीक है? 50-50 आ गया तो भी कॉइन ठीक है, 60-40 आ गया तो भी ठीक है, 70-30 आ गया तो भी ठीक है. बट जब 90 और 10 का आ रहा है, तब जो है वो कॉइन ठीक नहीं है, मैं कह रही हूँ. सो दिस इज माय एक्सेप्टेंस रीजन. एक्सेप्टेंस रीजन क्या बताता है? कि जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस मतलब कि कॉइन जो है वो फेयर है, तो इस रीजन के बीच में अगर मेरा आता है, तो मैं कहूंगी कि आई एम एक्सेप्टिंग द null hypothesis. Null hypothesis says that coin is fair. But if my results come in this region, either this region or this region, I might say that I cannot accept this. This is the rejection region. This is also rejection region. Okay. Is it clear? यहाँ पे मैं कहूंगी कि मैं अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, सॉरी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूँ. नल हाइपोथेसिस क्या है मेरा? कि कॉइन जो है वो फेयर है, बट 90 टाइम्स हेड ही आ रहा है और सिर्फ 10 टाइम्स वो आ रहा है, टेल आ रहा है. तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं रिजेक्ट करती हूँ कि कॉइन फेयर नहीं है. सिमिलरली ऑन दिस रीजन. ओके. दिस 2 bars आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है. ये जो दो मेरे पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं इनको, इसको कहती हूं मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके. दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. जो बाकी का बचा उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल. ओके. confidence interval and significant interval. Now what is this confidence interval or significant? ये हमारी decision boundaries होती हैं. Can you see these 2 lines? These are our decision boundaries, कि हम इनके थ्रू डिसीजन लेंगे. जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, 10 था और 90 था. ठीक है. अब अगर 10 टाइम्स टू 90 टाइम्स के बीच में वेरिएशन आती है हेड या टेल की, देन वी से दैट वी आर
confident that null hypothesis is true. What is null hypothesis? That coin is fair. बट इस लेवल में आती है तो हम कहते हैं अगर हम बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज है तो हम कहते हैं कि हमारा नल वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी से दैट आवर कॉइन इज नॉट फेयर. नाउ व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल? आपने सुना होगा बहुत बारी, हम कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. अब ये जो हम डिसीजन दे रहे हैं कि हम कि कॉइन फेयर है या नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, इसका मतलब ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि कॉइन जो है वो फेयर है या कॉइन फेयर नहीं है. ठीक है. सो दिस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल टेल्स अस कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजन के लिए. ओके. एंड सिग्निफिकेंस लेवल इज डिनोटेड बाय अल्फा. अगर ये 95% है, द होल एरिया अंडर द कर्व इज 100%, ये 95% है ये एरिया, सो रेस्ट ऑफ द एरिया विल बी 5%, है ना. और ये अगर 5% होगा तो हाफ हाफ अगर इसको बांट दें तो दिस एरिया इज 2.5% एंड दिस एरिया इज ऑल्सो 2.5%. ओके. 95%, 2.5, 2.5 पूरा हो गया 100%. Is it okay? Now who defines this confidence interval? कौन define करता है? This is defined by domain expert. अब domain expert क्या होते हैं कि जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हमने सबने एग्जाम्पल वो सुना कि वैक्सीनेशन आई थी. ठीक है. अब वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिव है, हमने टेस्ट करी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे. सो हम कह रहे हैं कि हमने टेस्ट किया है और हम ये कह सकते हैं 95% वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव. बट मेडिकल में जनरली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं होता, 99 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. ठीक है. 99% वी आर श्योर, क्योंकि हम वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ लाइफ. Okay, so we are sure that 99% we are confident that this vaccination is effective. Similarly, a marketing domain may give a confidence interval as 95%. That means he says that I am 95% confident that the users of Apple iPhone are happy. ओके. सो इसमें तो चल जाएगा क्योंकि इसमें इतना बड़ा वो क्लेम नहीं है. 95% वी आर श्योर दैट it is the iPhones are effective, people are happy. इसमें 99 की जरूरत नहीं है. सो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% है तो सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा 5%. इट इज 1 minus confidence interval, which is 0.95. Okay. If you remember, we saw in the curve, this is 95% confident interval. This is 2.5. This is 2.5. Achha, this is happening in case of two-tail test. Now let me explain you what is two-tail and what is one-tail test. Again, I am taking a hypothesis of same that a packet of chips, कंपनी क्लेम करती है कि पैकेट ऑफ चिप्स में 100 ग्राम होता है, बट हम कह रहे हैं कि कंपनी का क्लेम ठीक नहीं है, पैकेट में 100 ग्राम्स नहीं निकल रहा है.
नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज. ये पैकेट जो 100 ग्राम का है, हो सकता है जब हम इसको चेक करें, हमने चेक करे 100 पैकेट्स. अब उस 100 पैकेट्स को चेक करने में हो सकता है कि सारे के सारे हायर साइड पे निकले या सारे के सारे लोअर साइड पे निकले, सब में ही कम है, तो हम कहेंगे कि हमारा वन टेल टेस्ट है. ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन, ये रिजेक्शन रीजन. या ऐसा भी हो सकता है कि हमने चेक करे 100 पैकेट्स, किसी में ज्यादा निकल रहा है, किसी में कम निकल रहा है, तो दोनों साइड है ना, हायर साइड भी हो सकती है और लोअर साइड भी हो सकती है. तो उस केस में हमारा रिजेक्शन रीजन जो है वो दोनों साइड आ जाता है. आर फॉर रिजेक्शन, रिजेक्शन रीजन दोनों साइड है, तो वो टू टेल टेस्ट है. इफ रिजेक्शन रीजन इज ऑन वन साइड, इट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमने किया था, देन इट इज वन टेल टेस्ट. कॉइन में हम कह रहे हैं कि 10:90 भी रेशो आ सकता है, 90:10 भी आ सकता है, तो हमारा टू टेल टेस्ट है. ओके, दिस इज क्लियर. एक्सेप्टेंस रीजन एंड सिग्निफिकेंस लेवल. एक्सेप्टेंस रीजन दो तरह से हम इसको बोलते हैं. एक एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन, और दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, एक्सेप्टेंस रीजन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिजेक्शन रीजन, सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल. ओके, नाउ दिस इज, यहाँ इस लाइन पे जो है वो वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसे अभी हमने कॉइन की करी थी 10 और 90, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हो सकती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअर फेंस वैल्यू, और इसको हम कहते हैं हायर फेंस वैल्यू. अगर जो हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल से, अगर तो वो हमारी लोअर और हायर के बीच में आ रही है, इन दिस पोर्शन वी विल से वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. वैसे करेक्ट वे नहीं होता एक्सेप्ट कहने का, अभी मैं आपको बताऊंगी. वी से वी फेल टू रिजेक्ट, इधर वी से वी रिजेक्ट और वी से वी फेल टू रिजेक्ट. बट अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड, अगर इन दोनों के बीच में आती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर इन दोनों बाउंड्रीज के बियॉन्ड आती है तो हम कहते हैं कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं. एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते किसको है? नल हाइपोथेसिस को. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? Now let me I'll just take a break of 2 minutes and come back. Okay, so see, हमने करना प्रैक्टिकली है, but these concepts are important, so that is why I took these concepts. Now let us start with our practical part. How are we going to do that? Let us see. सबसे पहले जी टेस्ट सीखते हैं. ठीक है, जी टेस्ट सीखने से पहले let us learn about when to use. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी, आई थिंक मैंने आपको वो नहीं कराया कि टी टेस्ट होता क्या है ना? नहीं कराया ना? ओके, लेट अस लर्न अबाउट द टी टेस्ट फर्स्ट. टी टेस्ट होता क्या है? टी टेस्ट होता है जहां पे हम मीन के डिफरेंस को
टेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज मीन्स मीन. दो ग्रुप्स के मीन को, एवरेज को कंपेयर करते हैं. एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई. Average population level of Delhi and Bangalore. क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं, दिल्ली और बैंगलोर. दो के बीच में किसको कंपेयर कर रहे हैं, उनके एवरेज को. एवरेज म्यू 1 2. ओके, सो हमारा टू, when we measure the differences of two means, we use t-test. Okay. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती कैसी है. स्टेटमेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कौन से लगाते हैं. टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, सॉरी मैंने टेस्ट लिख दिया. टाइप ऑफ हाइपोथेसिस एंड स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, टी टेस्ट हम तब लगाते हैं जब हमारी स्टेटमेंट इस तरह की होती है. देयर एग्जिस्ट्स, पहले नल हाइपोथेसिस ऐसा होता है, देयर एग्जिस्ट्स नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे डिफरेंस इन एवरेज एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली एंड मुंबई. ओके, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस. So whenever we talking about difference, we apply z-test. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की. काई स्क्वायर टेस्ट में नल एंड ऑल्टरनेटिव. जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की, ठीक है, जैसे कि देयर एग्जिस्ट्स नो सिग्निफिकेंट association between two things, male and female we can say. और alternate क्या करेंगे, there exist significant association. ठीक है, so whenever we talk about association of two things, we always do or more things, we always use chi-square test. Similarly, correlation test. कोरिलेशन की बात हम करते हैं, हम कोरिलेशन टेस्ट तब लगाते हैं जब हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं किसी दो चीजों के बीच में, वी से that when we say no relationship or null hypothesis, when we say significant relationship between variables, है ना. जैसे कि अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, अगर बात करें कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का रिलेशनशिप है
या नहीं है, ठीक है। तो हम जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम कोरिलेशन टेस्ट लगाते हैं। सिमिलरली अगर हम काई स्क्वायर कब लगा रहे हैं, जब हम एसोसिएशन देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लेवल ऑफ टॉक। लेवल ऑफ टॉक इन द सेंस की टॉकेटिव, जैसे हम ये कहें कि लड़कियां ज्यादा टॉकेटिव होती हैं, लड़के कम टॉकेटिव होते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जेंडर से। बट जब हम कह रहे हैं देर, तो अल्टरनेट क्या कह रहे हैं, नहीं ये कहीं से कुछ तो क्लू मिला है, ऑब्जर्व हुआ है कि नहीं, देर इज अ देर इज सम एसोसिएशन विद द जेंडर। ओके, आगे और भी होते हैं। I'll just write one or two more. Rest we can do later when we will be doing. Regression analysis हम तब करते हैं, वो वाला टेस्ट तब लगाते हैं जब हम कहते हैं कि there is no significant impact, और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टिजमेंट हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सेल्स। बट जब हम कह रहे हैं कि देन देर देर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टिजमेंट ऑन सेल्स, तो ये हमारा ऑल्टरनेट हुआ। सो जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम रिग्रेशन टेस्ट करते लगाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो इज इट क्लियर? टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब डिफरेंस की बात करते हैं, इक्वल है कि नहीं है। काई स्क्वायर कब करते हैं, इसमें एग्जांपल क्या दिया टी टेस्ट में, कि दोनों का पॉल्यूशन लेवल जो है वो, या दोनों की सिटीज की एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज सेम। काई स्क्वायर फीमेल और मेल में का टॉकेटिव होने से कोई एसोसिएशन है कि नहीं है। व्हेन देयर इज एसोसिएशन वी अप्लाई काई स्क्वायर। व्हेन देयर इज कोरिलेशन, कोरिलेशन कब लगाते हैं, व्हेन देयर इज व्हेन वी टेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का रिलेशनशिप जब देख रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कब करते हैं, व्हेन वी सी द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। गर्मी का इम्पैक्ट आइसक्रीम की सेल्स पे है कि नहीं है, so that time we apply regression analysis. So now can you tell me when do we apply t-test? When do we apply t-test? Any guess? When there is no significant difference. डिफरेंस, जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, टी टेस्ट में हम दो चीजों की बात करते हैं। वन इज, एक तो डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, टू ग्रुप्स के बीच में, difference between two opinions, two groups or something, or can be one only, but population से भी हो सकता है, I'll tell you। और दूसरा मीन होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। किसका डिफरेंस, मीन या एवरेज का। these two things are important. okay, now टी टेस्ट जो है वो तीन तरह का होता है, let me discuss that also. So टी टेस्ट, types of टी टेस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, वन सैंपल एज द नेम से, जिसमें वन सैंपल है। ओके, वन सैंपल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मारुति क्लेम करती है कि हमारी अर्टिगा कार जो है वो 20 की माइलेज देती है, ठीक है। अब ये कंपनी का क्लेम है कि 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज देती है। ये क्या है, ये मारुति का क्लेम है, ये हमारा पॉपुलेशन मीन है। एवरेज इटसेल्फ मींस
मीन ना, सो ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन मीन, mu is equals to 20. Now people say that this claim is not true, okay, and they want to check it. So वो क्या करेंगे, they take 20 cars for example and then they check it. Alternate hypothesis, क्योंकि ये चेक करना चाहते हैं, तो हमारा null hypothesis हुआ कि माइलेज जो है अर्टिगा कार की 20 होती है, ये कंपनी कह रही है एज इट इज सिचुएशन बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्यू, बट रिसर्चर कह रहे हैं नहीं 20 नहीं होता, ठीक है। उन्होंने 20 कार्स पे टेस्ट किया, फिर टू चेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि नहीं होता। सो इन दिस केस वी विल अप्लाई वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट मीन्स एक ही सैंपल है, कार्स का ही सैंपल है ना, 20 जो है वो कार ही है, ठीक है, देयर इज नो अदर वे। सो हमने किया क्या, हमने इनका 20 कार्स का चेक किया मीन और उसको कंपेयर किया पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। हमने कार्स पे चेक किया और फिर देखा कि कंपनी कह रही है कि 20 है, कि वो एक्चुअली 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। Accordingly, we will reject or not reject our null hypothesis. One sample t test समझ में आ गया, जिसमें हम डिफरेंस देखते हैं, we test the difference between sample mean and population mean. This is sample mean, this is population mean. Okay. Second type of test is independent sample t-test. This is second type of t-test. बच्चे हो सकता है अभी आपको पूरा you are not able to sink in the entire thing, but it's okay, you can watch it repeatedly. I will share these recordings with you so that the concepts gets firm in your mind. But yes, for practicing practical today, you need to have a little knowledge about these things. That is why I am explaining. इंडिपेंडेंट अभी हम सब प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, व्हेन वी टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। उसमें क्या था, एक सैंपल था और पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पे सैंपल ही दो है, सैंपल 1 का मीन और सैंपल 2 का मीन, ठीक है। सैंपल के मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, सो दिस इज सैंपल 1, दिस इज सैंपल 2। ओके, यहाँ सैंपल के बीच में ही कर रहे हैं हम कंपैरिजन। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन। हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। फॉर एग्जांपल हमने सैंपल लिया रूरल से, रूरल रीजन से हमने सैंपल लिया 50 का, हमने अर्बन एरिया से 50 का लिया, तो हमने दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम दो सैंपल्स को ही कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल अब ये सैंपल जो है ये सेम उससे भी हो सकते हैं, अलग उससे भी। फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक द एवरेज सैलरी पैकेज which a CA student gets or MBA student gets, ठीक है। सो मैं किसका चेक कर रही हूँ, CA और MBA स्टूडेंट्स का एवरेज सैलरी पैकेज। नाउ दिस इज सैंपल 1, दिस इज सैंपल 2, मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। ओके, नाउ दिस सैंपल कैन बी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी or college or can be from
different university or college as well. Similarly, मैं urban versus urban भी कर सकती हूँ, rural versus rural भी कर सकती हूँ. So second type of t-test is when there is independent sample, when we test the difference between two independent sample means. Okay. पहले वाले में एक सैंपल था, उसको पॉपुलेशन से कर रहे थे. दूसरे वाले में सैंपल वर्सेस सैंपल कर रहे हैं. नाउ थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट. इसको हम पेयर्ड की फॉर्म में भी ले सकते हैं और रिपीटेड की फॉर्म में भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी दो सैंपल हैं, प्री पोस्ट. दिस इज सैंपल 1, दिस इज सैंपल 2. पेयर इटसेल्फ मींस दो. ठीक है. कोई एक इवेंट हुआ बीच में, उसमें हम देख रहे हैं कि क्या मीन जो है वो इक्वल आए कि नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी. प्री ट्रेनिंग उनका मीन चेक किया, उनका परफॉर्मेंस चेक किया, और पोस्ट ट्रेनिंग, इवेंट क्या था, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग उनका परफॉर्मेंस चेक किया, वेदर इट इज इक्वल और नॉट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्फ स्टडी करी, तो मैंने आपका टेस्ट लिया. ठीक है, टेस्ट 1. फिर मैंने बीच में आपको पढ़ाया. फॉर एग्जाम्पल, यू गेट द कोचिंग. फिर मैंने पोस्ट आपका परफॉर्मेंस देखा. ठीक है. वेदर कोचिंग इज इफेक्टिव और नॉट, दिस इज द इवेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने डाइट ली. हम देखना चाहते हैं कि डाइट इफेक्टिव है कि नहीं है. प्री डाइट वेट चेक किया सबका, पोस्ट डाइट वेट चेक किया सबका. सो दिस इज कॉल्ड पेयर्ड या रिपीटेड. रिपीटेड कैसे होगा, सेम ही सैंपल है ना, उसी को पहले चेक किया और उसी सैंपल उन्हीं लोगों को बाद में चेक किया. इज इट क्लियर? सो व्हाट ऑल थ्री टाइप्स डू वी हैव? Three types of t-test. Yes, First yes. is जहां पे हम Example. वन सैंपल को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन से, है ना. ये इसको हम कहते हैं वन सैंपल टी टेस्ट. सेकेंड क्या है, जहां पे हम टू सैंपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, का कंपैरिजन कर रहे हैं, मेल वर्सेस फीमेल, रूरल वर्सेस अर्बन रिस्पोंडेंट्स, MBA वर्सेस CS कैंडिडेट्स. सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. ठीक है. थर्ड टाइप इज पेयर्ड और रिपीटेड. ठीक है. इसमें हम जनरली प्री और पोस्ट का डिफरेंस देखते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड पेयर्ड या रिपीटेड. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. You want a break of 2 minutes? Or should I continue? So far we have done this. Let's take a break of 2 minutes and then I will teach you Z-test and T-test. Okay, let us see when to use T-test and Z-test. ठीक है. अब
the first question that should come to your mind is, do you know the population standard deviation? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एनीबडी नोज? हमारा स्प्रेड बताता है वो डेटा का, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो 5'7" है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2, तो वो 5 तक और 5'9" तक, दो देर इज अ formula, different formula to calculate range, but just for the easy sake I just want to tell you the standard deviation कि ऊपर नीचे कितना हो सकता है, कितना डेविएट हो सकते हैं हम मीन से, हमारा डेटा कितना डेविएट हो रहा है मीन से। ओके, सो डू यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? दिस इज द क्वेश्चन which we need to ask. Accordingly we will apply t-test or z-test, though it is very difficult to know practicality in practical world. So ये मुश्किल होता है, बट अगर पॉपुलेशन छोटा सा है या कुछ ऐसा है, सो इफ इट इज पॉसिबल, थियोरेटिकली तो हम करते ही हैं ये, ठीक है। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है पॉपुलेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, है ना। सो इफ इट इज यस, देन देयर आर टू बाइफिकेशंस। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, सो वी यूज t-test. This is going to be of your use in practicals. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको टी टेस्ट लगाना है कि जी टेस्ट लगाना है। सो मेन इज दैट if you don't have the if you don't know the population standard deviation, if it is not given in the question, you will have to apply t-test, and this is the reason why in practicality we apply t-test only, because hardly we know the population standard deviation. But if it is known, then we check the sample size. Is the sample size above 30? 30 से ऊपर है या नहीं है? अगर तो वो 30 से ऊपर है तो हम लगाएंगे सेट टेस्ट, अदरवाइज हम लगाएंगे, if it is below 30, then also we will apply t-test. So t-test is applied in two cases, yeah, or we can say z-test is applied in one case when the population standard is not known and the sample size is above 30. Okay, and t-test कब कब लगता है? जब या तो पता ही नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, ये और अगर पता है बट सैंपल साइज बहुत छोटा है, सो उस केस में हम standard this t-test we apply, otherwise we apply z-test. Okay, let us start with the question now. The problem statement is, I'll just open the new other window. Can you see this question? Say question number 2. Is it visible? The average height. No, ma'am. It is not visible. Let me copy it to the. I don't know. How does it come in?
Okay, I think it is visible now. Yes, ma'am. Okay, now let us see. The question says the average height of all the residents. All means population, right? Average means mean. So average height of all the residents in a city is 168 centimeter. ठीक है, जैसे हम जनरली कह भी देते हैं कि इफ यू कंपेयर द हाइट ऑफ इंडियंस विद ऑस्ट्रेलियंस, सो यू कैन सी अ प्रोमिनेंट डिफरेंस. सो ऐसा एक क्वेश्चन है कि एवरेज हाइट ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इन अ सिटी इज 168 centimeter with a population standard deviation of 3.9. A doctor believes, अच्छा हमने यहाँ क्या क्या लिखा, एक तो ये एवरेज है और किसका है, पॉपुलेशन का. सो कैन आई राइट, you always have to write these statistics. Okay, so population mean दिया हुआ है कितना, 168 centimeter. Standard with a population standard deviation. Now since the population standard deviation is known, ठीक है, तो अब हम वो यस नो वाले, अगर तो नहीं पता होता तो टी टेस्ट करते, पता है तो दो चांसेस हैं, 30 से ऊपर सैंपल है तो जी टेस्ट, 30 से कम सैंपल है तो टी टेस्ट. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 3.9. प्लीज डू लिसन टू दिस very carefully. Okay, now another thing is, this is first line says this information. A doctor believes the mean to be different. वो कह रहे हैं, डॉक्टर बिलीव कर रहे हैं, जैसे हमने बिलीव किया था कि कॉइन ठीक नहीं है या पैकेट जो चिप्स का है वो ठीक नहीं है, कंपनी का क्लेम ठीक नहीं है. सो यहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं, द डॉक्टर बिलीव्स दैट द मीन टू बी डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स ऊपर भी हो सकता है, हाइट और नीचे भी हो सकती है, एवरेज ये नहीं है. ठीक है, सो सिंस डिफरेंट लिखा है, ऊपर या नीचे नहीं लिखा है, सो दैट मीन्स दिस इज अ टू टेल टेस्ट. अगर वो कहता डॉक्टर बिलीव करते, डॉक्टर बिलीव द मीन हाइट टू बी मोर देन 168, तो हमारा राइट टेल्ड होता, वन टेल. अगर वो कहते हैं नो इट इज लेस देन 168, तो हम कहते हैं हमारा वन टेल लेफ्ट साइड है. सो ये टू टेल टेस्ट है. ठीक है, ही मेजर्ड द हाइट ऑफ 36 इंडिविजुअल्स. कितने की, व्हाट इज आवर सैंपल साइज, 36. 36 सैंपल साइज का मतलब क्या है, दैट n इज ग्रेटर देन 30. सैंपल जो हमने लिया वो 36 इंडिविजुअल का लिया चेक करने के लिए, जैसे हमने 100 टाइम्स टॉस किया था ना उसको, ऐसे हमने ये किया. एंड फाउंड द एवरेज टू बी 169. अब जो सैंपल पे टेस्ट किया उसका मीन क्या निकल के आया, 169.5 सेंटीमीटर. Okay, is this clear? This information is given to us. Yes, ma'am. Okay, now this is we know that population, since population standard is given and n is 36, we have to apply z test here. Okay, so first step is to form a hypothesis. So first step क्या होता है हमारा, hypothesis लिखना. Hypothesis, can anybody tell me null hypothesis क्या होता है? स्टेटस क्यू, कि मीन जो है वो 168 सेंटीमीटर है. ये हमारा नल हाइपोथेसिस है. अब डॉक्टर बिलीव कर रहे हैं तभी हम ऑल्टरनेट पे आए हैं, क्योंकि 168 होता तो कोई बात नहीं है ना, जो है. बट डॉक्टर कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, तो वो क्योंकि वो टेस्ट करना है इसलिए हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे आए हैं. हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, डॉक्टर का क्लेम है कि 168 सेंटीमीटर नहीं है. नल हाइपोथेसिस इज कि ये 168 सेंटीमीटर है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्यों आया? बिकॉज डॉक्टर का क्लेम है एंड वी वांट टू चेक इट वेदर द डॉक्टर इज राइट और नॉट. ठीक है, एंड वी नो दिस इज टू टेल टेस्ट, राइट. फर्स्ट स्टेप क्लियर है, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस. सेकेंड स्टेप, confidence interval. Was it mentioned in the question? No, it is not mentioned, but generally you will find it is mentioned. If it is not, you can give yours. So confidence interval 95% or we can say 0.95. हम 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे चेक करेंगे. फिर हम अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा? 5%. 5%. Very good. Which is 1 minus 0.95. है ना? So confidence interval हमारा ये है. We can see these are, ये limits निकालेंगे, boundaries निकालेंगे. ठीक है, अगर तो हमारा सैंपल का मीन, सैंपल की वैल्यू इसके बीच में आई तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर यहाँ पे आई तो हम रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, किसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं? डू वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट? किसको करते हैं? ऑलवेज वी टेस्ट द नल हाइपोथेसिस थ्रू दिस स्टैटिस्टिकल मेथड्स. सो हम क्या कहेंगे कि अगर इस रेंज के बीच में आएगा सो वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, और अगर इस रेंज के बीच में आएगा सो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. ठीक है, अब ये एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस जो है ना, ये वर्ड गलत है. ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, हम इसको या तो हम कहते हैं रिजेक्ट या हम कहते हैं फेल टू रिजेक्ट. मतलब तो सेम ही है ना. इधर वी से we are accepting null hypothesis or we are saying we fail to reject null hypothesis. Meaning is same. Why we say that अगर तो हमें sufficient proof मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं we fail to reject null hypothesis. अगर हमें नहीं मिलते हैं, जैसे डॉक्टर को अगर तो sufficient proof मिल गया, सो हम क्या कहेंगे? we fail to, because हमें alternate accept करना है. alternate accept करना है तो हमें रिजेक्ट करना है null hypothesis. तो हम कहेंगे we have sufficient proof, that is why we reject null hypothesis. But for example, डॉक्टर को sufficient proof नहीं मिले, ठीक है, सो हम क्या कहेंगे? अब नहीं मिले तो alternate hypothesis true नहीं हो सकता. और alternate hypothesis क्या कहता है कि 168 सेंटीमीटर नहीं है, लोगों पे टेस्ट किया कि वही आया. सो इन दैट केस वी विल से we fail to reject null hypothesis because we could not gather sufficient proof, or we do not, our study did not support, right? So what do we say? We do not say accept or reject, we say either we reject null hypothesis or we fail to reject null hypothesis. Is it clear? First step हमने क्या किया? We formulated the null hypothesis. Second step, we defined confidence interval. Okay, now third step is we will define the decision rule. अब हम decision rule बनाएंगे कि कब हम accept करेंगे और कब हम accept नहीं करेंगे. ठीक है, so to find this range, अब हमें, क्योंकि हमें डिसीजन बनाना है तो हमें ये वाली रेंज चाहिए. ठीक है, we look at
Z टेबल, ठीक है। Z टेबल हम इसके लिए देखते हैं एंड Z टेबल के में हम वी ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ओके, लेट मी शो यू द Z टेबल। Is the screen visible to you? Yes, ma'am. I mean, I am opening Google. Can you see? No, ma'am. No. Let me just make some adjustments. I'm choosing the screen option. Can you see now? Yes, ma'am. Okay. So in Google, I'm just typing Z table. Okay. Now let us open any Z table. हमारा टेस्ट कौन सा है? दिस इज लेफ्ट टेल्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। हमारा टेस्ट कौन सा है? टू टेल ना। ओके, चलो इसमें देखते हैं वन साइड वाले में, ठीक है। नाउ इन दिस वन साइड टेबल हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? 95%. 90-95%। अगर just a second, I will show you on the screen. Let me show you this first. This is not working here, but ओके। सो अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें, पूरा 1 है, ठीक है, 1 या 100%, 1 माइनस 0.025 अगर हम करें, एक साइड का कितना था हमारा रिजेक्शन एरिया? 2.5%, राइट। कंप्लीट 100% है, अगर आप ये देखो कंप्लीट 100% है, बीच का 95% था, साइड साइड का 2.5% था। सो अगर मैं पूरे 100 में से 2.5% माइनस कर दूं, सो मेरे पास क्या बचेगा? 97.5%, और आई कैन से 9.9750, and in this table I will try to locate the value 0.975. Here it is. Can you see here 0.975 written in 1.9 row? 1.9 row, I can see the value 9.750. And let me have a look at the column. It is under 0.06. How do we say then? Z value, how do we see? 1.9, and we look at the column. It is in 0.06. So we will say that the value is 1.96. So now you have seen the value. I'll just show you on the board. Where that board has gone.
Okay. Now this screen is visible. Yes, ma'am. Okay. अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो. जो कर्व होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी देता है. ये लाइन जो होती है वो z वैल्यू देती है. ठीक है. हमें डिसीजन रूल बनाना था. हमें यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू चाहिए, है ना, ताकि हम देख सके कि हमारा डिसीजन रूल, हमारी लोअर फेंस वैल्यू और हायर फेंस वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है. तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को देखने के लिए हमने किया ये वाला टेबल देखा. ये पूरा का पूरा 1 है. दिस एंटायर थिंग इज 1 और 100%. इसमें ये एरिया कितना है, 2.5%. अगर मैं 1 में से 2.5% माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 0.975, या मैं कह सकती हूँ 97.5%. राइट. अब मैंने क्या किया, मैं Z टेबल पे गई. Z टेबल में यहाँ पे वैल्यूज लिखी थी 1.1, 1.2, 1.3 लाइक दिस. सो मुझे 1.9 पे ये वाली वैल्यू दिखी. यहाँ पे लिखा था 0.975. फिर मैंने इसके ऊपर देखा, यहाँ लिखा था 0.606. सो मैंने इससे निकाली 1.96. सो मेरी वैल्यू Z वैल्यू क्या आई, 1.96. दिस इज हाउ वी सी द Z टेबल. सो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आई, 1.96. और यहाँ पे क्या, और क्योंकि सिमिलर ही यहाँ पे है, अगर मैं, दिस इज जस्ट आइडेंटिकल ना, अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो 1 माइनस ये करूंगी तो यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस हो जाता है. So this you can remember also at 5% confidence interval. The Z value is 1.96 and minus 1.96. So हमारा डिसीजन रूल क्या होगा, ये जो सेंटर वैल्यू होती है ये मीन होता है. ठीक है. Z की वैल्यू 0 होती है और ये मीन 168 होता है. ओके. नाउ व्हाट डू वी से, कि अगर हमारी वैल्यू -1.96 से 1.96 के बीच में आई, दैट मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन. दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन. बट अगर हमारा वैल्यू जो है वो 1.96 के बियॉन्ड आया या -1.96 के बियॉन्ड आया, तो हमारा कहाँ पे जाएगा, ये रिजेक्शन एरिया में. ठीक है. सो अभी हमने डिसीजन रूल क्या बनाया, so what is our decision rule, that if our value comes between -1.96 to +1.96, we will accept और हम रिजेक्ट कर देंगे इफ इट इज लेस देन -1.6 और greater than, sorry, sorry, or greater than 1.96. Is this decision rule clear? Yes, क्या ma'am. किया है हमने, है ना, वैल्यू निकाली 1.96, 1.96. इसके बियॉन्ड आया तो रिजेक्ट, इसके अंदर आया तो एक्सेप्ट. एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता क्या है, null hypothesis. Remember. Okay. Now this is our decision rule. Now we will apply
statistical analysis. Was it our fourth step? First was formulation of hypothesis. Second was setting confidence interval and significance level. Third, making decision rule. Fourth is statistical analysis. Okay. Now, Z टेस्ट होता है हमारा, इसकी वैल्यू होती है x बार. x बार क्या होता है? सैंपल का मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n. ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर मैं डिटेल में समझा दूंगी. स्टैंडर्ड एरर क्या होते हैं? सैम्पलिंग एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, ये एरर्स होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, राइट? सो स्टैंडर्ड एरर को हम कंसिडर करते हैं. ओके, एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट वाज द सैंपल मीन इन द क्वेश्चन? Sample mean was 169.5. Am I right? 169.5. What was our mu? Population mean क्या था? 168. 168. 168. Population standard deviation क्या था? 3.9. 3.9 and divided by under root किसका होगा? 36. 36 का. ठीक है, so let us try. इसका रूट 4 हो गया. Let me do it with my calculator. आप भी निकालो क्या आएगा इसका. It is coming out to be 2.31. ठीक है, नाउ हमारा जो हमने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, हमारी z कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई? 2.31. और हमारी z की क्रिटिकल वैल्यूज क्या थी? प्लस माइनस 1.96, राइट? minus 1.96 plus 1.96. Okay, so what do you think? Is it falling, our value 2.31, is it falling in rejection area or acceptance area? Rejection. Rejection area, because it is falling under this region. So what do we say? Okay, so we know this is falling in rejection area. Now the last point is conclusion. How do we write conclusion? ठीक है, हम conclusion लिखते हैं. Since 2.31 is greater than 1.96, है ना? Since it is falling in rejection area, since 2.31 is greater than 2.31 है calculated value और 1.96 है critical value. Since 2.31 is greater than 1.96, we reject. rejection region में है ना, क्या reject करते हैं? We reject Null hypothesis. null hypothesis. और null hypothesis क्या था? कि mean height जो है वो 168 है. अगर हम इसको गलत कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि mean height जो है वो 168 नहीं है. We are rejecting null hypothesis and we are accepting alternate hypothesis. So हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर का क्लेम जो है
Is it right or wrong? Right. Right. So doctor is actually right that the mean height is not 168. ये उससे बड़ी ज्यादा भी है और कम भी है. ठीक है. And how can we say that he was right? Because he could gather sufficient proof. Proof कैसे collect किया? By testing on how many people? 36 people. So have you understood how did we calculate Z value? Yes, ma'am. We will be solving more questions like this, but just wanted to show you how we do it. Okay, एक और question करा दूं Z value पे. Would you like to understand one more question? And then we will move to t-test. And then solving on Excel is just a 2 minutes exercise. Yes, ma'am. एक Z value का कराती हूँ, then I will take a break of 5 minutes and then we will do another question on t-test. Is not coming. What other option can I have to paste it here? Just give me 1 minute. Okay. Actually, I'm not working on laptop. So it is, okay, drop down is there. But still it is coming in a very big form. Meanwhile, you can, I have sent you the Word file, no? Wait. Okay. Now can you see? इतने Yes, में तो ma'am. मैं आई थिंक इतने में तो मैं टाइप ही कर देती और अभी भी पूरा नहीं आया आई थिंक.
Okay, let me write it here. Okay, the question is, a laptop manufacturer claims that the average battery of its laptops is 10 hours. ठीक है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, ऐसे हर कोई क्लेम करता है ना कि इसकी बैटरी इतनी है. A consumer group tests 49 laptops and finds sample mean to be 9.5 hours, and then population standard deviation to be 1.4 hours. इस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझते हो यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि लैपटॉप की एवरेज लाइफ तो है 10. एवरेज कब हम कहते हैं? हम कहते हैं ऑन एन एवरेज, है ना. सो 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि 10 में से 1.4 आवर्स कम भी हो सकते हैं और 1.4 आवर्स ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. सैंपल साइज इज 49. ओके, देन सिग्निफिकेंस लेवल हमें देखना है. significance level is 0.05. Okay, now the question is there enough evidence to doubt the manufacturer's claim? Okay, now this is the question. ठीक है, let us see. A laptop manufacturer claims कि एवरेज बैटरी लाइफ जो है लैपटॉप की वो 10 घंटे की है. ठीक है. अ कंज्यूमर ग्रुप टेस्ट 49 लैपटॉप्स एंड फाइंड्स दैट द सैंपल मीन इज 9.5 hours. Population standard deviation is 1.4 hours. Sample size is 49. Significance level is 0.05. Let me write it here. So 10 hours क्या है ये? What is this 10 hours? What is this 10 hours? Population? Population mean. Yes. A consumer groups test 49 laptops. ये n बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. टेस्ट किया है? मैम नहीं, सैंपल. सैंपल का है. टेस्ट किया ना 49 लैपटॉप्स. सैंपल मीन किससे डिनोट करते हैं? x बार से. 9.5. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, इसीलिए z टेस्ट लगाएंगे. 1.4 hours. Did you understand the standard deviation meaning? Sample size we have Yes, already ma'am. written. Significance level means alpha. अगर significance level 0.5 है तो confidence interval कितना हो गया? 0.9. 95%. Yes, 0.9. Okay, now first step होता है हमारा hypothesis formulation. क्या कहेंगे हम null hypothesis में कि μ1 नहीं है, म्यू ही है यहाँ पे, बिकॉज μ1 जब होता है, μ1 μ2 होता है जब 2 सैंपल होते हैं. ओके, दैट नल हाइपोथेसिस इज जो कंपनी कह रही है, जो स्टेटस क्यू है. ठीक है, क्या है कि म्यू जो है वो 10 आवर्स है, बट हम कह रहे हैं कि नहीं है.
अगर हम कह रहे हैं नहीं है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाइपोथेसिस इज ओके। सेकेंड, ये भी 2 आवर 2 टेल टेस्ट है, बिकॉज कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कहते कि नहीं कम है, तो हम क्या हाइपोथेसिस ये लगते, हम ये कहते कंपनी कह रही है 10 आवर्स है, बट हम कह रहे हैं, सॉरी दिस इज म्यू ओनली, लेकिन हम कह रहे हैं कि लेस देन 10 आवर्स है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं ये लेस देन लिखते तो हमारा 1 टेल हो जाता, ठीक है। बट हम कह रहे हैं कि नहीं 10 आवर्स नहीं है, तो हमारा 2 टेल है, ओके। 1 टेल भी इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ओके। नाउ second step is we have to define the confidence interval. It is 95%, significance level alpha is 5%, ठीक है। अब हमें तीसरा डिसीजन रूल निकालना है, बनाना है। डिसीजन रूल के लिए हमें चाहिए Z वैल्यूज। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे Z वैल्यूज क्या होती है, -1.96 टू +1.96। ये हमारा डिसीजन रूल है। यहाँ आया तो एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ आया तो रिजेक्ट करेंगे। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा क्या होता है, वी हैव टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल जी। एनालिसिस। नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने के लिए जी टेस्ट क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन, ठीक है। एक्स बार कितना है, आई फॉरगॉट व्हाट वाज द एक्स बार, 9.5। बिल्कुल। नहीं ये एक्चुअली हम 9.5 कह रहे हैं, तो ये 1 टेल ही हुआ। नहीं नहीं सॉरी, सॉरी, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, दिस इज 9.5, म्यू इज 10। 10, 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 था, कितने का सैंपल था, 49 का, है ना। सो इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आती है 7, ये हो गया 1.4 डिवाइडेड बाय 7 थ्रू कैलकुलेटर, it is coming out to be -0.25. Wait, this is coming to be -2.5, ठीक है। अब दिस इज द वैल्यू वी गॉट, तो हमारा Z कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई, -2.5। Z की क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ±1.96। So can you tell me it is falling in rejection area or acceptance area? Rejection. Rejection area. So rejection area, let's write the conclusion now. और कौन से वाले रिजेक्शन में, लेफ्ट साइड वाले रिजेक्शन में आ रहा है। लेफ्ट साइड वाले रिजेक्शन का मतलब है कि 10 आवर से कम ही है। अगर राइट साइड वाले रिजेक्शन में आता तो हम कहते कि 10 आवर से ज्यादा है। गॉट इट। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सिंस -2.5 is less than -1.96, we reject क्या कर रहे हैं, null hypothesis, right? If we reject null hypothesis, and if we are rejecting null hypothesis, we will say we have sufficient proof to say that mean average life of laptop is
less than 10 hours. Yeah, not equal to 10 hours, yeah, less than. Since it was coming in the minus area, so I wrote it less than 10 hours. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. Z वैल्यू निकालनी आ गई, ये उस पे निकालना सिर्फ 1 मिनट का काम है. कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी था. एक्सेल पे हम 2 मिनट में निकाल लेंगे. ठीक है. टी वैल्यू आज ही कर ले, अभी कर लेंगे तो 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपका सारा बेस बना हुआ है. वी जस्ट हैव टू डू द टी वैल्यू थिंग. ओके. So we can take a break of 5 minutes and then or probably 2 minutes. I can come back again in 2 minutes. Okay. So since we know that we are doing questions on t-test, but the way to identify, I will also tell you. In a population, the average IQ, population का average, मतलब mu. As soon as you get the information, you keep writing it down. That means 100 is the population mean. A team of researchers wants to test a new medication to see if it has either a positive or negative effect on intelligence or no effect at all. अगर आपने if you remember if you watch advertisements, आपने देखा होगा कि मतलब वो बताते हैं कि बॉर्नवीटा पीने से हाइट बढ़ जाती है, ऐसे मेडिकेशंस लेने से दिमाग और तेज हो जाता है. सो एक किसी ने क्लेम किया कि कोई मेडिकेशन आई है जिससे इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है. ठीक है. सो टीम ऑफ रिसर्चर वांट्स टू test a new medication whether it has a positive effect or negative effect or no effect at all. So a small sample of 30 participants, n is 30 who have taken the medicine has a mean of 140. मतलब 30 लोगों का मीन क्या आया? 140. देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे सिंपल देख के ही पता चल रहा है कि 100 है और 140 है. नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम कंसिडर करते हैं. देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड. सो ऐसे देख के नहीं बताते हम. विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20, अभी ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है? दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन. Oh, this is a sample standard deviation. Did the medication affect intelligence? Okay. Now, this information is given about sample. This is about population. Okay. The question says कि population का mean है, average IQ है 100. Researchers देखना चाहते हैं कि उसका कोई effect है कि नहीं है. A small sample of 30 participants who have taken the medications has been tested and the mean came out to be 140 with a standard deviation of 20. We want to check, did the medication affect intelligence level? So what is our first? अच्छा, यहाँ पे हम टी टेस्ट क्यों लगा रहे हैं? एक तो फर्स्ट रीजन ही हमारा वो है कि population standard deviation is not known. When the population standard deviation is not known, we apply t-test. So first step is formulating hypothesis. What is our null hypothesis? That population mean is average IQ कितना है? 100. 100. What is our alternative hypothesis? कि 100 नहीं. नहीं है, और ये टू टेल टेस्ट है. Okay. Now, what is the next thing? We define our confidence interval. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? No. नहीं दिया हुआ. अभी हम 95% मैं एक्सेल में कराऊंगी तो इट इज जस्ट अ 1 सेकेंड जॉब. 98 करना हो, 94 करना हो.
If confidence interval is 95%, alpha is significance level is 5%. So this is our second step. What is our third step? We This अच्छा इसमें एक और चीज है, डिसीजन रूल बनाने से पहले इसमें एक चीज और आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आता है, बट दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n-1। n-1, n कितना है 30 माइनस टू सैंपल में डिफरेंट हो जाएगा, 3 में डिफरेंट हो जाएगा, बट बेसिक जो होता है वो n-1 29। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं 11, ठीक है। जब फर्स्ट क्रिकेटर जाएगा उसके पास 11 चॉइसेस हैं, कहीं पे भी वो जा सकता है। सेकंड क्रिकेटर जाएगा, एक पहले वाले ने ऑक्यूपाई कर ली, सेकंड के पास कितनी बची 10 चॉइसेस बची ना, क्योंकि एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके पास कितनी फ्रीडम है चूज करने की 10। थर्ड प्लेयर जब जाएगा उसके पास कितनी फ्रीडम बचेगी 9. 9। so this is degree of freedom. फॉर एग्जाम्पल हम सब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 चेयर्स, एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, हो गई, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बचा n-1। सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हमारे पास चूज करने के लिए कितनी फ्रीडम है। ओके, नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब हम टी टेबल देखते हैं, अब हम डिसीजन रूल जो है वो जी टेबल से नहीं टी टेबल से डिफाइन करेंगे। जब हम टी टेबल देखते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो यू। Is this Google visible, Google screen visible to you? No. Not yet. Oh shit, it is. Oh wait. Is it? It's not clear? I mean, is it visible? No, ma'am. Okay, let me show it to you. You can open at your end. I will just show you how does it work. ओके, जैसा अभी जी टेबल था ना, ऐसा आपको टी टेबल दिखेगा। टी टेबल जब आपको दिखेगा तो उसमें दैट टेबल विल बी लाइक दिस। ओके, दैट टेबल विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब 2 टेल 1 टेल की वैल्यूज लिखी होंगी। ओके, सो हमें अभी कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए 9। हमारे केस में नहीं 9 था, क्या था, नहीं 29। सो यहाँ पे हम देखेंगे 29 रो, और टी वैल्यू 2 टेल टेस्ट है ना हमारा, और 2 टेल में हमारे पास यहाँ पे 1 टेल की भी वैल्यूज होती हैं और 2 टेल की भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो 2 टेल में हम देखेंगे 0.025 में, है ना। 2 टेल में लिखा होगा 0.5
और वन टेल में लिखा होगा 0.025। यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे इसके इंटरसेक्शन पे, और वो वैल्यू दिखेगी आपको 2.045। ठीक है, so this is the value which you will get from the T table, just like C table. The only difference is you need degrees of freedom here. Okay, now coming to decision rule. Third part is डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमें टी वैल्यूज है हमारे पास अब। ठीक है, दिस इज 2.045 एंड दिस इज -2.045। सो डिसीजन रूल क्या है कि इन दोनों के बीच में आया तो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड नहीं बोलते, वी फेल टू रिजेक्ट, और अगर इसके बियॉन्ड आया तो वी से it falls in rejection area. So this is our decision rule. Okay, let us apply statistical analysis. So we are calculating T test statistics. T is equals to x bar minus mu standard deviation। अब यहाँ पे S आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम सैंपल का ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय रूट n। No, just give me 2 minutes. Okay, x bar was 140. If you remember, हमारे क्वेश्चन में x bar जो था वो 140 था और म्यू 100 and s was 20. 140 minus 100, s is 20 divided by n root is 30. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, so the answer is coming 10.96. Okay, so what do you think? Where will it lie? Rejection. Rejection और कौन से वाले? Right answer. राइट साइड वाले, मतलब राइट साइड वाला मतलब इंक्रीज। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? Karan, can you call Papa please once? Conclusion is, since t value is greater than, t value क्या है हमारी? 10.986. 10.98 is Six. greater 10.96 is, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, इज ग्रेटर देन 2.05, we reject null hypothesis and we can say, इसको 5 मिनट बस रख लो, he's was with me. Okay, so we can say that reject null hypothesis means, null hypothesis क्या कह रहा था कि मेडिकेशन का इफेक्ट, that intelligence level is 100. Okay, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता था? 100 नहीं है, उससे ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, सो अभी ज्यादा आ गया, सो वी कैन से दैट मेडिकेशन हैज पॉजिटिव इफेक्ट, इट, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन। ठीक है, ये जरूर लिखना है। इट कैन हेल्प गेन इंटेलिजेंस। सो मतलब मार्केट में जो ये पिल आई है, इसका मतलब है कि वो हेल्पफुल है इंटेलिजेंस को करने में। ठीक है, अगर नेगेटिव एरिया में आता तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल
क्रिटिकल वैल्यू अगर हमारी जो कैलकुलेट करी है अभी हमने, अगर वो आ जाती हमारी 1.5 टी वैल्यू अगर आती, तो हम क्या बोलते? रिजेक्शन में जाती कि एक्सेप्टेंस में? Acceptance. तो एक्सेप्टेंस में आती, और एक्सेप्टेंस में आती तो हम क्या कहते? वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस नहीं, वी फेल टू रिजेक्ट। एक ही बात है ना, बट बोलते ऐसे हैं, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ऐसे ना कोर्ट रूम में भी बोलते हैं, वी फेल टू गैदर sufficient evidence against this person, that is why this person is proved not guilty, है ना? So ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि हम 100% नहीं कह सकते कि हमारा वो, हमने जो टेस्ट किया है वो ठीक ही है। हम बस 95% कॉन्फिडेंट है कि हमने जो टेस्ट किया है उसके बेसिस पे वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड medication has effect or no effect? No effect on intelligence level. So again, I'm saying this conclusion part is very, very important. Okay? समझ में आ गया? Yes, ma'am. So this is it Yes. from my side today. In tomorrow, we will be solving this practically on Excel. Do join with your laptops, and before coming, just go through this video. If you were not listening properly, if you could not concentrate properly, or if you want more clarity, do listen to this before we start the again. I'm saying doing practically on Excel will just take 2 minutes. It is not more than that, but understanding and how do we write the conclusion is more important.